भगवद गीता का अध्याय 9 श्लोक 21 से 34 तक। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तिलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्मं नुप्रपन्ना गतात् कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनातश्चिवन्ति ते यान्ति देवव्रता पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माम् पत्रं पुष्पं फलतोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रीतमश्नामि प्रियतात्मनः। यत्करोषि यच्छनासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनः संन्यास्यो वियुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सर्वभूतेषु न मे न प्रिय ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि च सुदुराचारो भजते मां नन्यभा साधरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सा क्षिप्र भवति धर्मात्मा शिश्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति महि पार्थ विपाश्रिते स्युपाप्योनय स्त्रियो वैश्यस्था यान्ति परागतिम् के पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुख लोकमिम प्राप्य भजस्व मां मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्तव्यवमात्मान्न मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या योगो नाम Bhagavad Gita, Chapter 9, verses from 21 to 34. Having enjoyed the extensive heaven world, they return to this world of mortals on the stock of their merits being exhausted. Thus devoted to the ritual with interested motive, recommended by the three Vedas as the means of attaining heavenly bliss, and seeking worldly enjoyments, they repeatedly come and go, i.e., ascend to heaven by virtue of their merits and return to earth when their fruit has been enjoyed. The devotees, however, who loving no one else constantly think of me, and worship me in a disinterested spirit, to those ever united in thought with me, I bring full security and personally attend to their needs. Arjuna, even those devotees who, endowed with faith, worship other gods, with some interested motive, worship me alone, though with a mistaken approach. For, I am the enjoyer and also the Lord of all sacrifices, but they who do not know me in reality as the supreme deity, they fall, i.e., return to life on earth. Those who are votaries of gods, go to gods, those who are votaries of manes, reach the manes, those who adore the spirits, reach the spirits, and those who worship me, come to me alone. That is why my devotees are no longer subject to birth and death. Whosoever offers me with love a leaf, a flower, a fruit or water, I appear in person before that selfless devotee of sinless mind, and delightfully partake of that article offered by him with love. Arjuna, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as oblation to the sacred fire, whatever you bestow as a gift, whatever you do by way of penance, offer all that to me. With your mind thus established in the yoga of renunciation, offering of all actions to me, you will be freed from the bondage of action in the form of good and evil results. Thus freed from them, you will attain me. I am equally present in all beings. There is none hateful or dear to me. They, however, who devoutly worship me abide in me, and I too stand revealed to them. Even if the vilest sinner worships me with exclusive devotion, he should be regarded a saint, for he has rightly resolved. He is positive in his belief that there is nothing like devoted worship of God. Speedily he becomes virtuous and attains abiding peace. Know it for certain, Arjuna, that my devotee never perishes. Arjuna, women, Vaishyas, members of the trading and agriculturist classes, Sudras, those belonging to the labor and artisan classes, as well as those of impious birth, such as the pariah, whoever they may be, taking refuge in me, they too attain the supreme goal. How much more, then, if they be holy brahmanas and royal sages devoted to me? Therefore, having obtained this joyless and transient human life, constantly worship me. Fix your mind on me, be devoted to me, worship me and make obeisance to me, thus linking yourself with me and entirely depending on me, you shall come to me. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 9th chapter entitled Vitya Yoga of Sovereign Science and the Sovereign Secret. वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकौम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकौम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं।
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियों चांडालादि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परमगति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परमगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मानने वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ अध्याय 9 समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।